مسلمانوں سب سے پہلے ہمیں بھی اور آپ کو بھی یہ جاننا ضروری ہے، ہم اللہ کو کیسے پہچانیں، ہم اللہ کو کیسے جانیں۔ یہ ایک انسان جب نوکری کرنے کے لیے کسی پارٹ ٹائم ہی کہہ لیجئے کسی جاب کرنے کے لیے کسی آفس میں جاتا ہے، سب سے پہلے یہ جائزہ لیتا ہے یہاں کا مالک کون ہے، یہاں کا ماسٹر کون ہے، یہاں کا سردار کون ہے، یہاں کا مالک کون ہے، سب سے پہلے وہ جائزہ لیتے ہیں۔ ہم اللہ کو مان رہے ہیں، کیا یہ ہمارے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس اللہ کے بارے میں جانیں کہ اللہ کون ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی قل هو اللہ احد، اے نبی وہ اللہ جن کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ ایک امرحمت تیو ناس نہنائے ناس ناس کنجن، وہ برہمہ ایک ہی ہے دوسرا نہیں، یا ایک آیت مشتہی ایک ہی دتیو ناستی، وہ ایشور ایک ہی ہے دوسرا نہیں، ایک ہی ہے دوسرا نہیں، جاننا چاہتے ہو اس لیے کہ دو ہو جائے گا تو کائنات دھرم برہم ہو جائیں گے۔ آج یہ کہے گا کہ جھبو ڈھولا بھی دعا کرے گا یہاں برسات ہو، پھر کل کو احمد آباد والے یہ کہیں گے اللہ نہیں آج یہاں بارش ہو، کوئی کہے گا دھوپ ہو، کوئی کہے گا بارش، کوئی اللہ یہ کہے گا نہیں میں بارش برساؤں گا، کوئی اللہ یہ کہے گا کہ نہیں آج دھوپ برساؤں گا۔ یہ لوگ بھی توقع کی امید رکھتے ہیں، یہ لوگوں کو بھی دھوپ کی ضرورت ہے، یہ لوگوں کو بھی برسات، دوسرا اللہ کہے گا ان لوگوں کو بھی برسات کی ضرورت ہے۔ ٹکراؤ ہوتے، لڑائیاں ہوتی، کائنات برباد ہوتی، اس لیے میرے بھائیوں اس اللہ کے بارے میں جاننا چاہیے تو وہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے بطن سے کوئی پیدا ہے، یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے۔ نا سمدر سے تستھتی روپم اسنا ککسوجکس کنینب، وہ اسور جن سے نہ کوئی بیٹا پیدا ہوا اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ میرے بھائیوں نتاسی پرتیما آسی، ان کی کوئی چھبی نہیں، کوئی فوٹوگرافی نہیں ہے، ان کی کوئی شکل نہیں، ان کی کوئی مورتی نہیں، ان کی کوئی مجسمے نہیں، ان کی کوئی چھبی نہیں ہے، ان کی جیسی کوئی نہیں ہے۔ ہاں وہ صفتوں میں ہے کہ سننے کا ذکر ہے، دیکھنے کا ذکر ہے، لیکن کس طرح ہے، ان کی شکل کیسی ہے میرے بھائیوں ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے۔ ہم جاننا چاہیں گے، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، وہ اللہ کون ہے؟ تو ہمیں اتنا علم ہونا چاہیے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی پوچھے تو ان کو یہی جواب دینا ہے کہ قرآن میں بھی یہ کہتا ہے، اور کئی ایسے دھرم کو آپ پڑھیے جس میں توحید کا ذکر ہے، ایک ایشور بات کا ذکر ہے، اور سب مانتے ہیں۔ توحید کی بہت ساری قسمیں بتائی گئی، ربوبیات، الوہیات، اسماء و صفات۔ میرے بھائیوں ہر مذہب کے لوگ کم از کم کسی نہ کسی شکل میں توحید کو مانتے ہیں، چاہے ربوبیات کی شکل میں ہو۔ آج تک کوئی قوم صریح طور پر انکار نہیں کر سکا، کسی نہ کسی شکل میں ان کے یہاں بھی توحید ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس اللہ کو مان گئے، اس اللہ کو پہچان گئے، تو اب ہم اس اللہ کے لیے کیا کریں اور اپنی زندگی کو کامل بنانے کے لیے کیا کریں، اپنے زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کیا کریں، ہم اپنے معبود کے لیے کیا کریں، ہم اپنے معبود کے لیے کیا کریں، دنیا میں کیا کر کے جائے کہ وہ ہماری اور آپ کی وہ نیکی کام دے۔ ایک مثال لے لیجئے، ایک بادشاہ ہے، اس نے اپنے 100 غلاموں کو کہہ دیا، 100 مزدوروں کو کہہ دیا کہ وہ مزدوروں ایک باغیچہ ہے میرا، جاؤ وہاں پر اچھے اچھے پھل میرے لیے توڑنا، اچھے اچھے پھل میرے لیے توڑنا۔ بادشاہ نے کیا کہہ دیا، اس مثال کو غور سے سنیے، اچھے اچھے پھلوں کو جمع کرنا، میں 1 سال کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں۔ 100 مزدور پھلوں کو چننا شروع کر دیے، توڑنا شروع کر دیے،
اور जमा करना शुरू कर दिया। 1 साल तक कंटिन्यू फलों को जमा किया, अच्छे अच्छे फलों को जमा किया, अच्छे अच्छे पक्के पक्के फलों को जमा किया। बादशाह आया और कहने लगा, ओ मजदूरों, अपने अपने फलों को लेकर आओ, अपने अपने फलों को लेकर आओ, जो लोग जितना तोड़ा लेकर आओ और मेरे सामने हाजिर हो जाओ। 100 मजदूर तोड़े हुए फलों को अपने बादशाह के सामने लाता है और बादशाह के सामने लाने के बाद बादशाह से कहता है, हुजूर अब क्या किया जाए? बादशाह ने क्या कहा था? मेरे लिए तोड़ो। अब बादशाह आखिर में कहता है, ओ मजदूरों, मैंने अपने लिए तोड़ने के लिए नहीं कहा था, बल्कि तुम्हारे लिए ही कहा था। तुम लोग उसी फल पर अपनी जिंदगी गुजारो, इक्तिफा करो उसी फल पर। अब तुम्हें कोई खाना नहीं दिया जाएगा, कोई पानी नहीं दिया जाएगा, जितना इंतजाम के उसी में से खाओ, और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा। देखिए बादशाह ने पहले क्या कहा था कि मेरे लिए तोड़ो। अब जाहिर सी बात है 100 आदमी फल तोड़कर लाए बादशाह के लिए, तो 90 आदमी ऐसे निकलेंगे कि जिन्होंने कच्चे पक्के फल तोड़कर लाया होगा, और 100 ऐसे आदमी होंगे जो अपने मालिक से हकीकी तौर पर इबादत करते हैं, मालिक की हकीकी तौर पर अपने मालिक को मानते हैं। तो 100 में 10 आदमी ऐसा निकला जो अपने मालिक की हकीकी तौर पर इबादत करते थे, अपने मालिक को हकीकी मालिक समझते थे। बादशाह ने कह दिया कि तुम इसी फल पर गुजारो, बसर कर लो, इसी फल पर जिंदगी गुजारो। मेरे भाइयों, 10 आदमी जिन्होंने अपने मालिक की इबादत सही तरीके से किया था, वो अच्छे फलों को खाकर जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन 90% लोगों का हाल ये होगा कि कच्चे पक्के फल तोड़कर लाए थे, वो उन फलों को खाकर बीमार पड़ जाएंगे। अल्लाह वही कहना चाहता, बंदो मैं जो भी करवा रहा हूं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए करवाना चाहता हूं। तुम दुनिया में अच्छे फलों का इंतजाम करोगे, अच्छे नेकी का इंतजाम, नेक काम अंजाम दोगे, नेकी के काम को अंजाम दोगे, तो कयामत के दिन वही चीज तुम्हारे सामने पेश की जाएगी। मैं नहीं खाऊंगा, वो तुम्हें ही दिया जाएगा, और उसी के ऊपर तुम्हें जिंदगी इक्तिफा करनी है, जिंदगी गुजरो बसर करना है। दुनिया में अगर नेक काम करके गए हैं तो अल्लाह कहेगा इनके नेकियों के बदले में इन्हें उजरत दे दो। दुनिया में बुराई करके गए तो अल्लाह कहेगा इनके बुराई के बदले में इन्हें बुराई का भी नतीजा दे दो। मुसलमानों, अब हम सोचे कि हम अल्लाह के लिए अच्छे फल का इंतजाम इस दुनिया में कर रहे हैं या नहीं, या कच्चे पक्के फलों को तोड़कर सिर्फ दुनिया में दिखलाना चाहते इंसानों को, हाँ देखो मैं भी आबिद हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी खुदा को मानने वाला हूँ। लेकिन अल्लाह फरमाता है दिलों को जानने वाला मैं हूँ, और ये भी जानता हूँ कि तुम दुनिया में कौन सी आमाल बजा ला रहे हो, कौन सी आमाल कर रहे हो। तुम्हारी नेकी का काम अच्छा है या बुरा मैं जानता हूँ, उसमें तुम्हें इखलास की नीयत से तुम वो अमल कर रहे हो या नहीं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी जो अच्छे अमल करते हैं लेकिन इखलास के साथ नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह इन चीजों को जानता है, वो आलिमुल गैब है, गैब की बातों को जानता है। इंसान के दिल में क्या बीत रहा है, क्या पल रहा है, उसको भी अल्लाह जानता है। तो मुसलमानों, एक बादशाह ने जिस तरह कह दिया कि मैंने अपने लिए तोड़ने के लिए नहीं कहा था, बल्कि ये आजमाइश कर रहा था कि देख रहे हैं तुम मेरी बातों को मान रहे हो या नहीं, यानी तुम मेरे गुलाम हो, और गुलाम अपने मालिक की बात को मानता है या नहीं, और मानता भी तो कैसे मानता है, ये देखने के लिए, ना कि वो फल खाने के लिए। तो मेरे भाइयों, सेम वही मिसाल है। अल्लाह इबादत के हमारे मोहताज नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह के पास इतने फरिश्ते हैं, उनकी इबादत के लिए काफी है। अल्लाह फिर भी इंसान से इबादत क्यों करवाता है? इसलिए कि इंसान को अल्लाह आजमाता है कि दुनिया में कौन कितना नेकी के काम अंजाम देते हैं, कितने नेकी के काम करते हैं, उसी हिसाब से उसको उस दुनिया में सिला दिया जाएगा, बदला दिया जाएगा। लना अमालुना वलकुम अमालुकुम, हमारे लिए हमारा अमाल है, तुम्हारे लिए तुम्हारा अमाल है। भाई वो तो गुनहगार है, उनके मुकाबले में मैं अच्छा हूं। भाई वो ये तो कभी करते ही नहीं, हम तो कभी कभी कर लेते हैं। हिसाब आपको देना है। जब आपको कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाएगा, रिश्तेदारों से हजारों मोहब्बत रहे,
एक औलाद अपने माँ बाप को, एक माँ बाप अपनी औलाद को छोड़ना नहीं चाहते। भाई बहन का रिश्ता भी इतना मजबूत है मेरे भाइयों, तुर्की में भी कुछ दिन पहले जलजला आया, एक बहन ने अपने भाई को अपने जिस्म के पीछे नीचे छुपाए रखा, चट्टान उसके ऊपर है लेकिन अपने भाई को छुपाए रखी है। दुनिया में इंसान अपने रिश्तेदारों से इस तरह मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब कब्रिस्तान में आपको रखकर आ जाएंगे, आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि ये चीज है ही नहीं। मोहब्बत इस दुनिया के लिए है, इसलिए हम किसी की तरफ ना जाके, किसी के अंदर अगर अच्छाई हो उसको लेने की कोशिश कीजिए, बुराई है आप नजरअंदाज कर दीजिए, समझाने का हो तो समझाइए, वरना उनकी बुराई देखकर आप ये न कहें साहब वो तो बुराई करते हैं हम भी कर लेते, इसमें क्या हर्ज है। नहीं, बुराई की तरफ ना जाके। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो भी मर्द या औरत नेक अमल करेगा अल्लाह उनको पाकीज़ा जिंदगी देगा और उनके किए हुए कामों का उनको बदला देगा, लेकिन शर्त वो हुआ मोमिनुन, मोमिन होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए। वरना आपने देखा होगा, मुसलमानों क्लियर कर दूं, कई ऐसे नौजवान हमें ऐसे मिले हैं, कई ऐसे मुसलमान ऐसे मिले हैं जिनके दिल में शक है, शुबहात है। वो ये कहते हैं कि हमारे मुकाबले में एक गैर मुसलमान अच्छा काम करता है, नेकी का काम करता है, 10,000 रुपया हम मदरसे में देते हैं तो वो 20,000 देता है, हम अगर किसी यतीम की मदद करते हैं तो 2 की करते हैं, हम अगर किसी की भलाई करते हैं तो 3-4 की करते हैं, हम अगर किसी को पानी पिलाते हैं, सड़कों वगैरह पर नल वगैरह के इंतजाम करवाते हैं, तो हमसे ज्यादा वो कुछ नेक काम ज्यादा कर रहे हैं, नेकी के काम वो ज्यादा करते हैं। तो क्या उन्हें सवाब मिलेगा? मेरे भाइयों, उन्हें सवाब इसलिए नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो रहेगा इसलिए नहीं क्योंकि वो मोमिन नहीं है, और जन्नत जाने के लिए मोमिन होना शर्त है। पहले अल्लाह पर भरोसा, उसके बाद अल्लाह फरमाता है फहुवा हस्बुहु, अल्लाह उसके लिए काफी है। पहले भरोसा, उसके बाद अल्लाह उसके लिए काफी, पहले ईमान, उसके बाद नेक अमल। पहले हमें और आपको नमाज पढ़ने से पहले, हज करने से पहले, ज़कात देने से पहले उस ज़ात पर पूरी तरह से तवक्कुल रखना है, भरोसा करना है कि हाँ ज़लज़ला आए तो अल्लाह की तरफ से आए, घर में खुशियाँ आए तो अल्लाह की तरफ से, आजमाइश आए तो अल्लाह की तरफ से। यानी पूरा एतमाद, पूरा भरोसा कामिल मोमिन बनने के लिए होना चाहिए कि जो कुछ भी होता है अल्लाह ताला की तरफ से है। 400 रुपये इनको घुमा के दीजिए। पूरा भरोसा अल्लाह ताला पर हमें और आपको होना चाहिए, तब हमारी नेकी कबूल होगी, तब हमारा अमाल कबूल होगा। तो गैर मुस्लिम को सवाब इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो मोमिन नहीं है। वह हुआ मोमिनुन, इस हाल में कि वो मोमिन हो। अल्लाह फरमाता है कि हम उन मोमिनों को जो नेकी का काम करते हैं, दुनिया में नेक काम करता है, दुनिया में नेकी के काम अंजाम देते, हम उन्हें पाकीज़ा जिंदगी देंगे। आइए मुसलमानों, अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बूढ़े साहबी है, कुरान पढ़ता है, कुरान की उस सूरह पर पहुंचते हैं, सूरह तौबा की तिलावत करते हैं। सूरह तौबा पढ़ते पढ़ते एक आयत उनके सामने से गुजरती है, इनफिरू खिफ़ाफ़न व सिक़ालन, हर हाल में जिहाद के लिए निकलो, हर हाल में जिहाद के लिए निकलो, कूच करो, इनफिरू कूच करो, खिफ़ाफ़न हल्की होकर, व सिक़ालन भारी होकर, हल्की जाने लेकर और भारी दिल लेकर, हर हाल में जिहाद के लिए निकलो। बूढ़ा हो गया है, कुरान की आयत पढ़ी, उसका माना समझ में आ गया कि हर हाल में जिहाद के लिए निकलो। मेरे भाइयों, घर आता है और अपने बच्चे से कहता है, ओ मेरे बच्चे
तुम मेरे लिए जिहाद का सामान तैयार करो, घोड़ा तैयार करो, ऊंट तैयार करो, दुश्मन के वार से बचने के लिए ढाल तैयार करो, दुश्मनों से लड़ने के लिए तीर चलाने के लिए कमान का इंतजाम करो, तलवारें मेरे लिए तैयार करो, दुश्मन के वार से बचने के लिए ढाल, मारने के लिए नेजा, तीर, तलवार, यानी जिहाद का सामान तैयार करो। बेटा कहता अब्बू अल्लाह पर रहम फरमाए, इस उम्र में आपको जिहाद करने की क्या जरूरत है? आपने नबी अकरम के जमाने में जिहाद किया, अबू बकर के जमाने में जिहाद किया, उमर फारूक के जमाने में जिहाद किया। अब आप बूढ़े हो चुके हैं, हम आपकी तरफ से जिहाद कर लेंगे, आपको जिहाद करने की क्या जरूरत है? बूढ़ा हो चुका है, वो सहाबी बूढ़े हो चुके हैं। नबी अकरम के ज़माने में जिहाद किया, अबू बकर के ज़माने में जिहाद किया, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में जिहाद किया, लेकिन कुरान की आयत पढ़ी खिफाफ व सिकालन, चाहे हल्की होकर निकलो या भारी होकर निकलो। इस आयत की तफसीर मुफस्सिर इकराम लिखते हैं कि खिफाफन व सिकालन, यानी तुम्हारे पास दौलत रहे या न रहे, ताकत रहे या ना रहे। किसी ने कहा यह आयत मनसूख है, लेकिन इसकी तशरीह मुफस्सिर इकराम करते हैं कि हर हाल में जिहाद के लिए निकलो। जब अबू तलहा समझ गए कि बूढ़े हो चुके हैं तो क्या, अल्लाह ताला हल्की जाने लेकर और भारी दिल लेकर भी जिहाद करने का हुक्म दे रहा है, तो अपने बेटे से कह रहा है, जिद कर रहे हैं, मेरे बेटो तैयार करो सामान, मैं जाऊंगा लड़ने के लिए। इसलिए कि कुरान कहता है खिफाफन व सिकालन, हर हाल में जिहाद के लिए निकलो। वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, हर हाल में निकलो जिहाद करने के लिए। अगर मैं लड़ नहीं सकता तो क्या हो गया, अपने पार्टियों की, सहाबाए किराम की मदद कर सकता हूं जिहाद के मैदान में। मेरे भाइयों, फिर वैसा ही किया गया, जिहाद का सामान तैयार किया गया और एक समंदरी जहाज पर, कश्ती पर जिहाद का सामान रख दिया गया और अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस पर सवार हो गए। मेरे भाइयों, और कुदरत का करना यह था, करिश्मा कुदरत का ये था कि बीच रास्ते में अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमार पड़ गया, उसी जगह पे वो इंतकाल कर गए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जज्बा था सहाबाए किराम का कि अगर ताकत नहीं तो जान के साथ जिहाद, अगर ताकत नहीं तो माल के साथ, अगर माल नहीं तो जान के साथ। तो इस तरह सहाबाए किराम का जज्बा था। हमें और आपको जरूरी है कि उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी मुरत्तब करें। आइए, कुरान की एक आयत नाजिल हुई, सहाबाए किराम उसी जगह पे बैठे हुए हैं। कुरान की एक आयत नाजिल हुई, मन दल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को बेहतर कर्ज दे, कर्ज हसना दे। एक साहबी खड़े हुए, अबू दादा अंसारी खड़े हुए और अल्लाह के रसूल, क्या अल्लाह ताला भी कर्ज मांगता है? अल्लाह के रसूल ने कहा हाँ, अल्लाह भी कर्ज मांगता है। अबू तलहा ने कहा, अबू दादा ने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरा एक बाग है, मैं उसको बतौर कर्ज दे रहा हूँ, मैं उसको अल्लाह के रास्ते में दान दे रहा हूँ, मैं उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा हूँ। मैंने उसको अल्लाह के रास्ते में दे दिया। कुरान की आयत नाजिल हुई, उसी पर सहाबाए किराम ने अमल कर दिखाया, उसी पर सहाबाए किराम ने उसी वक्त अमल कर दिखाया। उस दरख्त में, उस बाग में 600 खजूर की दरख्तें थी, उस बाग में 600 खजूर की दरख्त थी। अबू दहदा ने उसी वक्त अमल कर दिखाया और कहा अल्लाह के रसूल, इस बाग को मैंने अल्लाह के रास्ते में दे दिया। अबू दादा ये कहकर उस बाग में दाखिल हुए, इसलिए कि उस बाग में उनका बच्चा रहा करता था, उनकी बीवी रहती थी। गए और आवाज लगाई, ओ उम्मे दादा, इस बाग से निकल आओ। बीवी है, शौहर क्या हो गया आपको? ये बाग तो हम ही लोगों का है, ये बाग तो हम ही लोगों का है।
کیا کسی نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا؟ کیا کسی نے ہڑپ لیا؟ کیا کسی نے قبضہ جما لیا ہے؟ کیا کشن گنج والے نے اس باغ کو ہڑپ لیا ہے؟ کیا پورنیہ والے نے اس باغ کو ہڑپ لیا ہے؟ آئے میرے شوہر، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس باغ سے نکل جاؤ، یہ باغ تو ہم ہی لوگوں کا ہے؟ ان کی بیوی کو پتا نہیں ہے۔ شوہر نے کہا میری بیوی، میں نے اس کو اللہ کے راستے میں قرض حسنہ قرض کے طور پر اللہ کو دے دیا ہے، میں نے اس کو اللہ کے راستے میں دان دے دیا ہے۔ بیوی اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا، اس سے نکل جاؤ، اس کو میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا، اور جو کچھ بھی پھل تم نے توڑا ہے اس کو ویسی ہی امانت لوٹا دو، اس کو ویسے ہی واپس کر دو۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا؟ شوہر نے کہا اللہ کے رسول نے کہا جو بھی اللہ کو قرض حسنہ دے گا، بہتر قرض دے گا، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں ایک باغ عطا کرے گا۔ وہ میری بیوی، جب اللہ کے رسول کے زبان سے یہ جملہ ہم نے سنا تو ہم نے اس باغ کو اللہ کے راستے میں دے دیا۔ تو بیوی نے کہا اے میرے شوہر، یہ کوئی مہنگی سودا نہیں ہے، تم نے اگر جنت کے بدلے میں اس کو دے دیا ہے تو تم نے بہت اچھا کیا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام اللہ کے راستے میں دے دیے تو بیوی نے یہ نہیں کہا کہ تم اب بچوں کی پرورش کیسے کرو گے، ہماری دیکھ ریکھ کیسے کرو گے۔ آج کل کی مائیں ہوتی، آج کل کی بیوی ہوتی تو اپنے شوہر سے کئی دنوں منہ چڑھائے رکھتی اور یہ کہتی دیکھو نا، گھر میں کھانا نہیں پینا نہیں، اور اللہ کے راستے میں پورے کے پورے باغ دے دیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ان کی زندگی کو ہمیں اپنی زندگی میں مرتب کرنا چاہیے۔ ان کے اثرات ہماری زندگی میں مرتب کیوں نہیں ہو رہے؟ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم عمل صالح کریں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں نیک کام بجا لائیں۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے، 6 بجے میری گاڑی ہے، پھر مجھے بنارس چلنا ہے۔ آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں کہ میرا وقت بالکل ختم ہو گیا ہے۔ آپ سے صرف اتنی سی نصیحت ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، سب کو نیک عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور اپنی بیوی کو بھی کہیے نیکیوں کی طرف بلائیے۔ میں بہت سے عورتوں کے زبان سے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف عورت کو حکم دیا کہ وہ نیکی کے کام کرے، لیکن نہیں، اللہ نے جہاں عورت کا ذکر کیا وہاں مرد کا بھی کیا، مرد کا کیا تو عورت کا کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ زیادہ تر مردوں کا ذکر کیا، لیکن اس آیت میں اللہ کلیئر کہہ رہا ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت اگر نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے۔ تو میری بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی میں ویسے انقلاب پیدا کیجئے، زندگی کو نیک بنانے کی کوشش کیجئے، اور اپنے شوہر کو بھی آپ بھی کوشش کیجئے کہ آپ کا شوہر شرابی نہ رہے، آپ بھی کوشش کیجئے کہ آپ کا شوہر جواری نہ ہو، کیونکہ میرے بھائیوں، ایک مرد اگر کسی عورت کی تربیت پر، کسی عورت کی دیکھ ریکھ پر جنت حاصل کر سکتا ہے تو وہی مرد اپنی عورت کو اگر آزادی چھوڑ دیتا ہے انہی عورت کی وجہ سے جہنمی بھی بن سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کے بعد اپنی بیوی بچوں کو بھی بچاؤ۔ اور یہی چیز منتروں میں بھی لکھا گیا، کہا گیا، ہندو دھرم میں جب 4 پھیرے لگوائے جاتے ہیں، 7 پھیرے لگوائے جاتے ہیں، اصل پھیرا 4 ہی ہے، اور منتر پڑھا جاتا ہے، وید کے سلوک کو لوگ پڑھتے ہیں تو ایک وچن لیا جاتا ہے، ایک وعدہ لیا جاتا ہے، اور لڑکی اپنے ہونے والے شوہر کے ہاتھ پکڑ کر، دامن پکڑ کر کہتی ہے او میرے شوہر، اگر تم نیکی کے کام کرتے ہو مجھے بھی اگر کرواؤ گے تو ہی میں آپ کے نکاح میں آؤں گی، ورنہ آپ کے نکاح میں نہیں آؤں گی۔ تو اب بتائیے، جب اس دھرم میں اس طرح کی تعلیم ملے تو ہمارا اسلام ہے، اسلام اور ہمیں کس طرح کی تعلیم دے سکتے ہیں، آپ اس بات سے اندازہ لگائیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کا بھی ذکر کیا، عورت کا بھی ذکر کیا، چاہے مرد نیک عمل کرے یا عورت کرے، اللہ تعالیٰ سب کو پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہے، اور ان کے کیے ہوئے اعمال پر اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، چاہے عورت ہو یا مرد، نیکی کی طرف آگے بڑھائیے۔ ہمارا قدم نیکی کی طرف اگر رہے گا، ہماری نیت اگر صرف نیکی کی طرف رہے گی، ہم اگر نہیں کر پا رہے پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی دے
मिलेगा। लेकिन बुराई की नीयत की है, इरादा की है, कदम बढ़ाए नहीं, किए नहीं, गुनाह नहीं लिखा जाएगा। जब तक हम करेंगे नहीं तो हम और आप, हमसे ज़्यादा खुश नसीब कौन हो सकता है। इसलिए मुसलमान भाइयों, आप सिर्फ तिजारत हर चीज़ को ना बनाइए, जलसे को तिजारत ना बनाइए, हर चीज़ को तिजारत ना बनाइए, बल्कि इस्लाह की नीयत से आप जलसा सुनने आइए, इस्लाह की नीयत से जलसा किया जाए, इस्लाह की नीयत से मदरसा खोला जाए, इस्लाह की नीयत से मदरसा चला जाए, ताकि हम दीन पर कायम रह सके। और जब हम दीन पर कायम रहेंगे, हमारा ईमान मजबूत रहेगा, तो जालिमों की ताकत हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। वला तहिनु वला तहजनु व इन कुंतुम राउलाना व इन कुंतुम मुमिनीन व अंतुम लाउना इन कुंतुम मुमिनीन। मुसलमानों, तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम्हारे पास बादशाहत रहेगी, तुम ही बादशाह रहोगे। व अंतुम लाउना इन कुंतुम मुमिनीन, शर्त ईमान वाले बन जाइए। तो आज से हम लोग इरादा करें, इस मजलिस में बैठकर इरादा करें, अल्लाह के सामने अल्लाह को हाजिर और नाजिर मान कर कहें और अल्लाह से कहें, अल्लाहुम्मा शहद, ऐ अल्लाह गवाह बनाकर तुझे कहता हूँ, आज के बाद से वचन लेता हूँ कि मदरसे को तिजारत की नीयत से नहीं, जलसे को तिजारत के गर्ज से नहीं, बल्कि दीन हमारा चले, मोहम्मद की शरीयत जिंदा रहे, इस्लाम पर हम बाकी रहे। दुनिया में मेरे भाइयों कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए हम और आप कहते हैं कि कुछ नहीं है। जब इस दुनिया में मुसाफिर की तरह हम और आप आए हैं, तो दुनिया में जिंदगी को छोड़िए और आखिरत की तरफ मुतवज्जह हो जाइए। आप इस दुनिया के आजाब को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, दुनिया की आग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त कीजिएगा। इमोशनल तकरीर हमारी कहीं भी नहीं हुई है और हम अब तक सोच रहे कि करें, लेकिन होती नहीं है। मेरे भाइयों, जरूरी है, इंसान अगर अपने आप को बदल डालता है तो उनकी कौम बदल जाती है, पूरी नस्ल बदल जाती है, खानदान बदल जाता है, पूरी कौम बदल जाती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, बारी हिला हम सबको दीन पर कायम रखें, जब तक हम जिंदा रहें, ईमान पर रहें, जब हमारा खात्मा हो ईमान पर हो। अगर दौरान तकरीर में कुछ गलती हो आप माफ़ कीजिएगा। ख़ास मैं शेरशाह आबादी बिरादारी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा इलाका किशनगंज है। अगर दौरान तकरीर में अल्फाज में कुछ गलतियाँ हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। इंशाअल्लाह हयात बाकी तो मुलाकात बाकी। आपका मैं एक दीनी भाई हूँ, आपका एक दीनी बेटा हूँ। आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।